پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ فیبروری 8 کو جب ہمارا الیکشن ہوں گے، آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے، تیر پہ مور لگا کے نہ صرف ہمیں صوبائی حکومت، ساتھ ساتھ آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے، اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا، جیالہ سی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس شہر کی ہم قسمت بدل دیں گے، اور ساتھ ساتھ پورا پاکستان کی قسمت انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے بدلیں گے۔ میں آج ایک بار پھر ہمیں کھیل کے میدان میں موجود ہے۔ 2-3 دن پہلے ہمارا پریس کانفرنس ہو رہا تھا، تو آپ میں سے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کھیل کے میدان بنائیں گے؟ تو اب ہم نے نہ صرف یہاں ابراہیم حیدری میں یہ کھیل کا میدان بنایا ہے، نہ صرف گزری میں یا لیاری میں، انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اسی قسم کا فیسلٹی بنائیں گے جیسے یہاں ملیر کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس قسم کے موقع دینے چاہتے ہیں جہاں وہ کوئی مثبت کام میں، کوئی صحیح کام میں، کوئی اچھا کام میں، جیسے سپورٹس ہے، کھیل ہے، ان چیزوں میں دلچسپی لے، نہ کہ کوئی غلط راستے پہ چلے جائے۔ یہ صرف ایک کھیل کے میدان نہیں ہے، یہاں ضرور فٹ بال گراؤنڈ کا نام تو دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہاں کراچی کے نوجوانوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا فیسلٹی بھی موجود ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوا سکیں، تاکہ ان کو روزگار کے موقع ملے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ حکومت کا موقع اگر ہمیں دیا جائے تو ہم نے اپنے نوجوانوں جو اس وقت مشکل میں ہیں، معاشی حالات بھی برے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہیں، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت ہوگا، جب پی پی کا حکومت ہوگا، تو اسی قسم کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جس سے ہم نوجوانوں کو وہ سکلز بھی دیں گے اور ان کو روزگار بھی دلائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں اتنا خوش ہوا کہ یہاں ہمارا ٹیچر ٹریننگ کا بھی فیسلٹی موجود ہے، جس سے وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں، ٹیچرز کو وہ سکلز دیتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف ٹیچرز بن سکیں، اپنے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکیں، مگر جب وہ ٹیچرز بنے تو ہمارے بچوں کو کس طریقے سے سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، وہ بھی سب کچھ ادھر ہی یہاں اسی فیسلٹی میں سکھایا جاتا ہے۔ ان اسٹوڈنٹس سے جو ووکیشنل ٹریننگ میں سکلز لے رہے ہیں یا ٹیچر ٹریننگ میں سکلز لے رہے ہیں، ان سے بھی میں ابھی مل کے آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ تعالی ان کا تعداد بڑھتا رہے گا۔ وہ نوجوانوں
जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपको दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कॉलेज भी मौजूद हैं जहाँ हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सकें, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके ताकि वो तालीम भी हासिल करके अपना रोज़गार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे पहली बार कराची का मेयरशिप दिलवाया है और इंशाअल्लाह ताला इस टर्म में मैं खुद साबित कर दूंगा, ये अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर हो। मुझे जानते तो है ना? जी बिल्कुल सही, मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ। आपका मीडिया सेल हमारी नौकरियों को खा रहा है। मेरा मीडिया सेल आपका? 50 लोग हैं मीडिया सेल में लेकिन वो मखसूस लोगों को बुलाते हैं। अच्छा वो मीटिंग तो उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बिल्कुल नहीं है आपका शायद ये मैं अब इस पे क्या कहूँ, ये मेरी गिला है एक तो ना सिर्फ मेरा बंदा तो अब छुपा रहा है अपने आप को उससे ये तो आपका एक तरफ से तो आपका कसूर है, साथ साथ आपका तो पूरा एक तंजीम सहाफ़ियों का साथ थे तो उनको भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि जब साथ आ रहे हैं तो सिर्फ वो खुद ना आए और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सवाल बीट रिपोर्टर्स है उनको मौका दिया जाए। जी ज़रूर। मुल्क में चेयरमैन साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स हैं वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, चेयरमैन साहब आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, नसर खोड़ो ने भी बात की, शाजिया मरी साहबा ने भी बात की, तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मेरा ख्याल में पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था GTC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था, वहाँ मैंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया, उसकी हमने हुकूमत बनाया। 2007 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। 18 अक्टूबर पे यहाँ कारसाज पे हमला होता है, हमारे कारकुन को शहीद किए जाते हैं मुल्क भर से। 27 दिसंबर को 2007 में
पिंडी में हमला होता है, ना सिर्फ शहीद बीबी को शहीद किया जाता है मगर मेरे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स को शहीद किए जाते हैं, मगर इन शहादतों के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। आपने बात की कराची की सियासत में आप हमेशा बात करते हैं। एक तवील अरसे बाद पीपल्स पार्टी का मेयर आया, हमने देखा कि हर दूसरे दिन कराची में कोई ना कोई एक्टिविटी चाहे खेलों के ग्राउंड की हो या सड़कों की तामीर की तो नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ 15 साल से आप जो गुजरा गए हैं उनके पास दरियाफ्त के इदारे हैं, LDA, KDA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर कॉर्पोरेशन कम हो गया है। कितनी मुश्किलात होंगी, मुझसे ज़्यादा आपको शायद मेयर साहब ने बता दी होंगी कि आपकी पार्टी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है। इसी तरह महकमा खजाना में एक बाजारी सिस्टम वो भी चलता रहा, इसी तरह 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट। भाई मिसाइल का तो अगर आपने जिक्र करना है तो वो मिसाइल ना सिर्फ सिंध में हैं, वो तो हर सूबे में हैं। और अगर हमने उन मसाइल का हल निकालना है, एक तरीका ये है कि हम शिकायतें करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें और कोई काम ही ना हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहा है, जब से मैं तो पूरा 15 साल के लिए तो यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं कम इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि किसके बारे में और मैंने कैसे शिकायत करना है। हमारा मकसद होता है कि काम निकालने का। हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारा सबसे बड़ा शिकायत ये रहा है कि जो हमारा वसाइल का हक है वो हमें नहीं दिया जाता। मगर इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने हाथ पे बैठ जाए और कहूँ कि वसाइल तो नहीं है तो मैं काम ही ना करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मसला देखते हुए अपने तरीक़ेकार निकाले कि कैसे हम काम भी करें, वसाइल हो या ना हो। और आपने फिर देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लीड ले ली, और चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कम्युनिकेशंस का, हेल्थ का, तालीम के इदारे हैं, वसाइल कम हो या ना हो, हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका निकाल के सर्विस डिलीवरी बेहतर किया है। इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि ना सिर्फ आपका सॉलिड वेस्ट में मगर आपका वाटर बोर्ड में तो बहुत सारे मसले हैं। अब हमने वो मसले हल करने हैं और कराची के अवाम को फ़ायदे पहुँचाना है। एक इत्तेहाद बना है कल या बन मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कराची और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, हर ओहदा पीपी का होगा, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं।